पता नहीं जी मान साहब अज पहुंचे हो इत्थे और खराबा है तकरीबन बहुत ज़्यादा खराबा होया है और लोगों दी जिहड़ियां फसलां ने 100% तबाह हो चुकी हैं। किस तरह देखते हैं इस चीज़ ਨੂੰ एक बारी फिर तकरीबन पिछले साल थोड़ी जी बचत हो गई सी 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਤਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ MOS ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੂੰਗੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿ ਟਾਂਗਰੀ ਮਾਰਕੰਡਾ ਘੱਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। मैंने पहले बहुत कोशिश की थी थोड़ा बहुत असी अगे गए फिर अगले साल मैं नहीं सी उस दे बाद फिर हल कोशिश की थी ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਾਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੇ ਸਮਾਣਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂਸੀ ਬਟਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਡਾਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਕ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਮੈਂ ਧਰਮਹੇੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ CM ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਸੀ ਬਟਾਣਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ और उन्होंने अगले दिन सारे हदायत देते थी और साढ़े बंदियां नाल संपर्क हो गया थी साढ़े हल्का इंचार्ज साढ़े जड़े उत्थे बंदे ने दूजे कि तुसी कल मीटिंग रख ली सी उत्थे हांसी उत्थे ही कंडे ते तरमेड़ी एक साढ़े वालों गए थी साढ़े पिंडां दे लोग और हरियाणा के पिंडों के लोग आए थे। दोनों पासियां दी बुला के बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई है कल और सानू पूरा आस है कि कोई ना कोई उत्थे हल निकलूगा। ये पहली बारी जब तो 2007 तो ये बनी है उदों ये पहली बारी मैनू भी कोई आशा की किरण दिख रही है कि उत्थे कुछ कम होगा। जी बौना रोग काफ़ी ज़्यादा फैलिया जी इस बार पटियाला जिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੇਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੌਨਾ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है मैं मिनिस्टर साहब दे राही ज़रूर एक गल करूँगी वे जहाँ फ्लड नहीं आए वहाँ भी एक इस मौसम की वजह से एक बीमारी निकली है जो अच्छी तरह पहले जो हो रही थी वो क्रॉप वो एकदम से नीचे हो गई कोई वायरस आ गई है फिजी वायरस
तो उस करके क्रॉप का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। ये एक और नेचुरल कैलेमिटी या मैन मेड कैलेमिटी जो भी है, ये भी हम इसमें आपकी रिपोर्ट में प्लीज़ इसको फ्लैग कर देना, इसको बता देते हैं। मैम लगता है Thank कि you। केंद्र तो भी काफ़ी मंत्री इस बारी पहली बारी ਜਿਹੜਾ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 25 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਰੈਡੀ ਜੀ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार आज मैं कल मैं यहाँ पे आई, क्योंकि सभी राज्य मंत्री को आदेश दिया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और पार्टी के हमारे अध्यक्ष की तरफ से कि पंजाब की जो भी परिस्थिति जो भी स्थिति हुई है उस वहाँ पे फील्ड पे जाके आप विज़िट करिए। वहाँ पे सभी किसानों से या जो लोग हैं वहाँ के गाँव के लोग हैं उनके साथ बातचीत करके क्या इशू वहाँ पे है, क्या मसला है, वो पूरा समझ के हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और कल से मैंने लगभग 4-5 विलेज विज़िट किए, आज भी यहाँ पे विज़िट कर रही हूँ। आदरणीय महारानी साहब भी मेरे साथ हैं, हमारे सभी पदाधिकारी हैं, यहाँ हमारे किसान संगठन के किसान भी हमारे भाई यहाँ भी हमारे साथ हैं। तो हम सबसे बातचीत कर रहे हैं और एक बार बातचीत होने के बाद जो भी समस्या यहाँ पे हमारे सामने रखी है सभी किसान भाइयों ने, तो उसके बारे में रिपोर्ट बनने के बाद ये पीएमओ ऑफिस भी सबमिट होगी। और जिस मंत्रालय से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे नदी का रिवर के इशू ज़्यादा है, तो वाटर रिसोर्सेज हमारे जो मंत्री है CR पाटिल साहब, मैं उनसे भी बात करूँगी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का दोनों का स्टेट का इशू यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो और जब बड़े रिवर की बातचीत आती है तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठ के इस मसले को हल करना मुझे लगता है वो ज़्यादा इजी रहेगा। और उसके साथ ही यहाँ पे रोड्स के भी काफ़ी इशू किसानों ने मुझे लोगों ने बताए, तो उसके बारे में भी मैंने आज कलेक्टर से बात की कि जो सेंट्रल की तरफ से जो PM-JSY का जो फंड्स है तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं क्या, अगर पूरा रिपोर्ट आने के बाद जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उस डिपार्टमेंट के साथ मैं भी फॉलोअप में रहूँगी, हमारे महारानी साहबा वो भी फॉलोअप में रहेंगे। और प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द किसानों का मसला ये सॉर्ट आउट रहे, क्योंकि एटलीस्ट अगली बार ये परिस्थिति वापस से ना बने। मैम आए वर्ष लोग आते हैं, पॉलिटिशियन भी आते हैं, सभी आते हैं, आश्वासन जरूर देते हैं, बट इनका हल नहीं हो रहा है पक्के तौर पे। और दूसरी बात है कि मुआवजा बहुत कम है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो किसान की जो इनकम ही लग जाती है और इसके खर्चा ही हो जाता है। वो बात सही है, लेकिन कल मैंने कई किसानों को पूछा कि यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस रहता है कि जैसे अभी मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, महाराष्ट्र में जैसे गुजरात में, वहाँ पे मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे मुझे किसानों ने बताया कि यहाँ पे कोई क्रॉप इंश्योरेंस ऐसा कोई नहीं है, जबकि वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर साल ऐसी स्थिति होती है तो किसानों को काफ़ी उसमें से सहायता मिल सकती है। तो ये इशू अभी जो सामने आ रहे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने के बाद ही कुछ ना कुछ इसमें से सॉल्यूशन निकल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि हर बार आश्वासन दे के जाते लेकिन कुछ होता नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उन्होंने भी खुद 1600 करोड़ का यहाँ पे पैकेज भी डिक्लेयर किया है। तो कोशिश यही है कि ये जो सब समस्याएं है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केंद्र सरकार के माध्यम से कैसा फ़ायदा किया जाएगा, इसलिए हम प्रयास करेंगे। मंत्री जी एक मैं जी इंश्योरेंस की गल कर एक मिनट इंश्योरेंस की गल करते वो तां ही गड्डी दी इंश्योरेंस हुंदी आ। उन्होंने ये कहा सी भी जे सारे पिंड दा मरदा है तो तां असीं देवांगे। हुण इत्थे देखो आ इलाका मर गया, बाकी पिंड बच गया, ये किसान किधर जाणगे जे वो इस हिसाब नाल तुहाडा जिहड़ा क्राइटेरिया ओहदे विच ओही आखे इन्हां ने कि इंश्योरेंस हो नहीं रही ना जूरे। इंश्योरेंस इस करके नहीं हुंदी क्योंकि पिंड नूं आई लंघे असीं कहंदे एक खेत नूं कई मन्नण असीं तैयार हां। हुण 22,000